محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے پہلے بھی باقی سے قول کے بارے میں دو چار معروضات آپ کو گزار کی گئی کہ جس میں مولا نے ارشاد فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، کہ لوگ دنیا کے غلام ہو چکے ہیں، والدین لہیۃ علی السنتہم، اور دین ان کی زبان پر چاٹ کے مانند باقی ہے، یعنی صرف لذت کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں، ما درت معاشہم، جب تک ان کی معیشت چلتی رہتی ہے، فَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُ، اور جیسے ہی یہ کسی بلا اور آزمائش میں گرفتار ہوتے ہیں تو دیندار بہت کم نظر آتے ہیں۔ اس دین کی مثال پیغمبر اسلام نے ایک شجر سے دی ہے، ایک درخت سے دی ہے کہ مثل ھذا الدین کشجر، یعنی دین کی مثال ایک شجر کے مانند ہے، ایک درخت اور ایک پیڑ کے مانند ہے۔ درخت میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ درخت میں جڑ ہوتی ہے، اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اس کے پتے ہوتے ہیں اور اس کا پھل ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں درخت میں ہوتی ہیں، درخت کی یہ خصوصیت ہے۔ تو رسول نے دین کی مثال درخت کے ذریعے سے دی ہے، تو جو دین کا درخت ہے اس کی بھی کچھ جڑیں ہوں گی، اس کی بھی شاخیں ہوں گی، اس کے بھی پتے ہوں گے، اس کے بھی پھل ہوں گی۔ تو رسول نے فرمایا کہ مثل ھذا الدین کشجرۃ، یعنی دین کی مثال درخت کے مانند ہے، ایک درخت کی طرح ہے۔ اصلھا الایمان، جس کی جڑ ایمان ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اگر انسان اپنے دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ جو دین کی اساس، دین کی بنیاد اور دین کی جڑ ہے، اور جڑ کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں پانی دیا جاتا ہے۔ اگر جڑ کو پانی نہ دیا جائے تو جڑ سوکھ جائے گی اور پیڑ سوکھ جائے گا، درخت سوکھ جائے گا اور خراب ہو جائے گا۔ رسول نے فرمایا کہ دین کی مثال درخت کے مانند ہے۔ اصلھا الایمان، اس کی اصل، اس کی اساس، اس کی بنیاد اور جڑ ایمان ہے۔ وماؤھا الصلاۃ، اور پانی اس کا نماز ہے۔ یعنی اس جڑ کو آپ کو مضبوط کرنا ہے تو نماز کے ذریعے سے، یہ سمجھ لو اس دین کے درخت کا جڑ کا جو پانی ہے وہ ماؤھا الصلاۃ، یعنی وہ نماز ہے۔ وفرعھا الزکوٰۃ، اور اس کی شاخ، اور اس کی شاخ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ صرف مال سے مرتبط نہیں ہے۔ جہاں زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہو تو زکوٰۃ کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ زکوٰۃ مال ہے، زکوٰۃ بدن ہے، زکوٰۃ علم ہے، زکوٰۃ اعضاء و جوارح اور زکوٰۃ قدم ہے، یعنی ہر ایک چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں زکی سے نکلا ہے، اور زکی کے معنی ہوتا ہے پاکیزگی کے، یعنی جس کی وجہ سے وہ چیز، مال زکوٰۃ کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ آپ نے مال کو حاصل کیا، اب اس کا اپنا نصاب ہے کہ کتنا مال کتنا پہنچ جائے، جانور کی زکوٰۃ کتنی ہوگی، غلے کی زکوٰۃ کتنی ہوگی، 8.5 کنٹل پہنچ جائے تب آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر جانور ہیں تو اس کے اپنے نصاب ہیں کہ کون جانور کتنی مقدار تک پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ تو دین کی شاخ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ علم بھی ایک چیز ہے۔
ज़कात इल्म क्या है? नशर, ज़कात इल्म नशर, यानी इल्म की ज़कात ये है कि इंसान उसको नशर करे, इल्म को फैलाए। ये नहीं कि इंसान कोई चीज़ सीख ले तो बस सिर्फ उससे अपना इस्तेफादा करे, अपना फ़ायदा उठाए, नहीं, बल्कि इल्म के ज़रिए से इंसान दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, अपने इल्म को इंसान नशर करे। तो ये इल्म की ज़कात है। और उसी तरीके से ज़कात क़ुव्वत है, यानी ताकत की ज़कात है। ताकत की ज़कात क्या है? ताकत की ज़कात ये है कि इंसान दूसरों की मदद करे, जिस तरीके से भी हो सके, इंसान के हाथ के ज़रिए से, पैर के ज़रिए से। अगर किसी को इंसान के पास ताकत और क़ुव्वत है, पावर है, और किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो इंसाफ के लिए इंसान कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि उसके पास ताकत है। तो ये उसकी ताकत की ज़कात है। उसी तरीके से ज़कातुल कलम है, यानी कलम की ज़कात। कलम की ज़कात ये है कि इंसान अच्छी चीज़ें तहरीर करे। कलम भी बहुत बड़ी ताकत होती है। कलम की ज़कात ये है कि इंसान अच्छी चीज़ें तहरीर करे, इसके वजह से लोगों को क्या हो, फ़ायदा हो। तो ये कलम की ज़कात होती है। तो हर चीज़ की एक ज़कात है, जिसके ज़रिए से दीन की शाख क्या होती है, मजबूत होती है। एक सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। और किसी भी ज़कात को देने में इंसान को बुख़्ल से काम नहीं लेना चाहिए, चाहे वो माल की ज़कात हो, चाहे वो कुदरत की ज़कात हो, चाहे वो इल्म की ज़कात हो, चाहे वो कलम की ज़कात हो, चाहे जिसकी ज़कात हो, उसमें बुख़्ल से काम नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बुख़्ल की बहुत ज़्यादा मज़म्मत की गई है, बख़ील इंसान की बहुत ज़्यादा मज़म्मत की गई है। लेकिन उसके मुकाबिल में जो इंसान सखी होता है, उसकी तारीफ़ की गई है, उसकी मदह की गई है। बख़ील इंसान के बारे में रवायत है कि बख़ील इंसान वो है कि जो बईदुम मिनल्लाह, बईदुम मिनन्नास, बईदुम मिनल जन्ना, यानी जो इंसान बख़ील होता है वो इंसान अल्लाह से भी दूर होता है, लोगों से भी दूर होता है, यानी लोग भी उसको पसंद नहीं करते हैं। वह बईदुम मिनल जन्ना, और वह इंसान जन्नत से भी दूर होता है। लेकिन उसके मुकाबिल में करीब मिनन नार, लेकिन बख़ील इंसान जहन्नम के करीब होता है। लेकिन उसके मुकाबिल में सखी इंसान वो होता है जो करीब मिनल्लाह, करीब मिनन्नास, करीब मिनल जन्ना व बईद मिनन नार, यानी और सखी इंसान वो है जिसको अल्लाह भी पसंद करता है, जिसको लोग भी पसंद करते हैं, और ये इंसान जन्नत के करीब होता है, लेकिन ये इंसान जहन्नम से दूर होता है। आपने हातिम ताई का नाम सुना है। हातिम ताई अपने ज़माने का सखी तरीन इंसान था। 40 दरवाज़ों से लोगों को फ़कीरों को दे दिया करता था। तो अपने ज़माने का बहुत सखी इंसान था। इसके बारे में कहते हैं कि इसको जहन्नम में रखा गया है, लेकिन इसकी सखावत की वजह से जहन्नम की आग इसको जलाती नहीं है। तो ये इसकी सखावत की वजह से है। तो सखी इंसान वो होता है कि जो इंसान जहन्नम की आतिश और आग से दूर होता है। और रसूल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कि सखावत, बेशक सखावत एक जन्नत का दरख्त है कि जिसकी टहनियाँ ज़मीन पर लटकी हुई हैं, और जो इंसान उसको थाम लेता है वो उसके सहारे से जन्नत में पहुंच जाता है। पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में एक मरतबा जंग हुई, जंग इख्तिताम पजीर हुई। जब जंग ख़त्म हो गई तो लोगों को कैदी बना लिया जाता है। तो बहुत से लोगों को कैदी बनाया गया। तो पैगम्बर इस्लाम ने जितने लोग थे सबको कहा कि इनको कत्ल कर दो, लेकिन उनमें से एक शख्स के लिए कहा कि इसको तुम रिहा कर दो। तो जब उसको रिहा किया गया तो वो भाग कर पैगम्बर इस्लाम के पास आया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, आखिर क्या माजरा है, क्या बात हुई कि आपने सबको हुक्म दे दिया कि इनको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी कुछ देर पहले हमारे ऊपर जिब्राईल नाजिल हुए और जिब्राईल ने कहा कि तुमको छोड़ दिया जाए। कहा उसकी वजह क्या है?
यानी उस शख्स ने पूछा अल्लाह के रसूल उसकी वजह क्या है, मुझे क्यों छोड़ा गया? तो रसूल ने कहा कि तेरे अंदर ऐसी ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जो अल्लाह को महबूब हैं और उसके रसूल को भी महबूब हैं। तो चूंकि वो शख्स अपने बारे में तो जानता था कि मैं कैसा हूँ, क्या क्या चीज़ें मेरे अंदर पाई जाती हैं, कहा अल्लाह से मेरे अंदर क्या चीज़ पाई जाती हैं, तो कहा सबसे पहली खुसूसियत तुम्हारे अंदर ये है कि तू अपनी औरतों के बारे में गैरतमंद है, यानी तू एक गैरतमंद इंसान है अपने नामूस के सिलसिले में। और जो इंसान अपनी नामूस के सिलसिले में गैरतमंद होता है उस इंसान को अल्लाह महबूब रखता है, उस इंसान को अल्लाह पसंद करता है। दूसरी चीज़ तेरी सिफत ये है कि तू शुजा है, तू एक बहादुर इंसान है, तेरे अंदर बहादुरी पाई जाती है। इस चीज़ को भी अल्लाह पसंद करता है और उसका रसूल पसंद करता है। तीसरी चीज़ तुम्हारे अंदर ये पाई जाती है कि तू अच्छे अखलाक का मालिक है, यानी हुस्न खुल्क तू मालिक है, इसलिए ये सिफत अल्लाह को भी पसंद है और उसके रसूल को पसंद है। चौथी सिफत तेरे अंदर ये है कि तू एक सखी इंसान है, जिसकी वजह से तुझे रिहा किया जाता है। उसने कहा कि ये चीज़ें तो सिर्फ मैं जानता हूँ। उसके बाद वहीं पर उसने कलमा पढ़ा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। यानी यकीनन बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि मेरे अंदर की जो सिफात हैं वो तन्हा मैं जानता हूँ, उसको और दूसरा कोई नहीं जानता, लेकिन चूँकि अल्लाह के आप रसूल हैं इसलिए आपको इसका इल्म है। तो जो दीन का दरख्त है, रसूल ने फरमाया कि उसकी जड़ ईमान है और उस जड़ को मजबूत करने के लिए नमाज उसका पानी है और ज़कात उस दरख्त की शाख है, और इस दरख्त का जो फल है वो आमाले साले हैं। यानी जो इंसान अच्छे आमाल अंजाम देता है, इंसान अच्छे आमाल तभी अंजाम देगा, इंसान नेक आमाल की तरफ तभी बढ़ेगा जब इंसान का ईमान मजबूत होगा, जब इंसान का ईमान तभी होगा जब उसको क़यामत के ऊपर यकीन होगा, अल्लाह के ऊपर यकीन होगा, रसूल के ऊपर ईमान और यकीन होगा। वही इंसान नेक अमल की जानिब कदम आगे बढ़ाएगा। और जो इंसान इन तमाम चीज़ों को अंजाम देता है और उसके बाद आमाले साले को अंजाम देता है, इसका मतलब ये है कि वो दीन के दरख्त को, फल को वो इस्तेमाल करता है। एक सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो दीन की मिसाल दरख्त के मानिंद है, जिसकी जड़ भी है, जिसकी शाख भी है, जिसके पत्ते भी हैं और जिसके फल भी हैं। और इमाम ने फरमाया कि लेकिन दीन तो लोगों की ज़बान पर चाट के मानिंद बाकी रह गया, यानी सिर्फ अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए लोग दीन का इस्तेफ़ादा करते हैं। जहाँ पर अपना फ़ायदा होता है वहाँ पर दीन का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर अपना फ़ायदा नहीं होता है वहाँ पर दीन को बालाए ताक रख दिया जाता है। जनाब सलमान पैगम्बर इस्लाम के पास आते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैंने कुछ अजीब व गरीब ख्वाब देखे हैं। रसूल ने कहा कि तुमने क्या ख्वाब देखा है? कहा अल्लाह के रसूल, मैंने ख्वाब में ये देखा कि आसमान से एक कपड़े का थान लटका हुआ है, आसमान से एक कपड़े का थान लटका हुआ है, और एक मुनादी पुकार पुकार कर कह रहा है कि जिसको चाहिए ले लो और ज़्यादा लो, लेकिन लोग आते हैं उससे थोड़ा लेते हैं, यानी लोग आ रहे हैं लेकिन बहुत थोड़ा सा उससे लेकर जा रहे हैं। आखिर ये माजरा क्या है? उसके बाद कहा रसूल, मैंने एक और ख्वाब देखा है। कहा क्या देखा है? कहा मैंने दूसरा ख्वाब ये देखा है कि दो गाय हैं, जिनमें से एक तंदुरुस्त है और दूसरी दुबली और पतली है, लेकिन कुछ लोगों को देखा जो अच्छे लिबास से आरास्ता हैं, मुज़य्यन हैं, और आकर उस मोटी गाय को छोड़कर जो पतली वाली गाय है उससे लोग दूर दूर रहे हैं। कहा उसके बाद कहा तीसरा ख्वाब मैंने ये देखा कि मुझको एक दूर का तालाब नजर आया। अब जब मैं उसकी जानिब बढ़ा मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन जब मैं उसकी जानिब बढ़ा, जब उसके करीब मैं गया
تو اس سے اتنی مجھے بدبو آئی کہ میں وہاں سے فرار کر گیا. آخر یہ وجہ کیا ہے, یعنی میں نے خواب یہ کیوں دیکھا؟ رسول نے کہا کہ اے سلمان تم نے آخری زمانے کے حالات دیکھے ہیں. رسول نے بیان کرنا شروع کیے کہ آخری زمانے کے تم نے حالات دیکھے ہیں. پہلی چیز جو تم نے دیکھا کہ آسمان سے کپڑے کا تھان لٹکا ہوا ہے اور منادی پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لے جاؤ, لیکن لوگ آتے ہیں اور اس سے تھوڑا سا لیتے ہیں. یعنی جو کپڑا ہے وہ دین ہے, یعنی یہ دین کا یہ لباس یہ ہے. اور منادی کہہ رہا ہے, یعنی جو اللہ کے جانب سے ہادی ہیں اور رہنما ہیں, یہ کہہ رہے ہیں تم پورا پورا دین لے جاؤ, لیکن لوگ آتے ہیں اور اپنے مطلب کا دین لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ آخری زمانے کے حالات ہیں. دوسرا خواب تم نے یہ دیکھا کہ دو گائے ہیں, ایک موٹی ہے اور دوسرے کمزور ہے. لوگ آتے ہیں اچھے لباس سے آراستہ ہوتے ہیں, موٹی والے گائے کو چھوڑ کر جو کمزور ہے اس سے دور رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر زمانے کے جو حکمراں ہوں گے, جو حاکم ہوں گے, وہ سارے قوانین ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو معاشرے کے کمزور لوگ ہوں گے. یعنی سارے قانون ان کے لیے نافذ کیے جائیں گے, لیکن جو مضبوط لوگ ہوں گے, جو تندرست ہوں گے, ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہوگا. یہ آخری زمانے کے حالات ہیں. تم نے تیسرا خواب یہ دیکھا کہ ایک تالاب ہے جو دور سے بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے, بہت اچھا نظر آ رہا ہے, لیکن جب تم اس کے قریب گئے تو تمہیں اس کے بدبو آئی. تو یہ آخری زمانے کے علماء ہیں, اگرچہ بات جس کے اوپر جا رہی ہو جائے, اگرچہ یعنی یہ آخری زمانے کے علماء ہیں کہ جن کا ظاہر انسان دیکھے گا تو بڑے خوبصورت نظر آئیں گے, بڑے اچھے نظر آئیں گے, لیکن جب لوگ ان کے قریب ہوں گے, جب ان کی حقیقت سے واقف ہوں گے تو لوگ ان سے نفرت کریں گے, ان کے کردار سے بدبو آتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہ آخری زمانے کے حالات ہیں کہ لوگ علماء سے اس طریقے سے بھاگیں گے جس طریقے سے لوگ درندے اور بھیڑیے سے بھاگتے ہیں. محمد محمد. اور یقیناً اگر آج آپ دیکھیں سارے وہ چیزیں جو رسول نے اور ائمہ نے بیان کی, وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آج دین کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے, آج کے حکمراں کے جو فرامین ہیں وہ کس کے لیے لاگو ہو رہے ہیں, اور علماء کے حالات تو آپ کے سامنے واضح اور آشکار ہیں کہ بہت سارے علماء میں سے علماء ان کو سو کہا گیا ہے, علماء سو, کہ جن کے اوپر امام کی تلوار چلے گی. یعنی جنہوں نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا, دوسروں کو تو راستہ ہدایت دکھاتے رہے لیکن خود اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا. تو ایسے علماء کے اوپر روایت ملتا ہے کہ ایسے علماء کے اوپر تلوار چلے گی. لہٰذا اگر انسان عالم ہے تو اگر وہ دوسروں کو اچھے راستے کی طرف ہدایت کر رہا ہے تو انسان کو چاہیے کہ پہلے اس پر خود عمل کرے. انسان کی بات کا اثر نہ ہونے کا ایک ذریعہ یہ بھی, ایک سبب یہ بھی ہے کہ چونکہ انسان خود عمل نہیں کرتا اور دوسروں کو چاہتا ہے کہ عمل کرے تو اس کی وجہ سے اس کا اثر نہیں ہوتا. اسی لیے خداوند عالم کہتا ہے کہ پہلے تم خود عمل کرو, اس کے بعد دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دلاؤ. صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ہم جس دین کے ہم ماننے والے ہیں, ہم جس دین کے پیروکار ہیں, ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اور امام نے اسی دین کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں قربانی دی. اور امام نے بھی, میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ امام نے اپنے خطبے میں کہا کہ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ كَالْأُحْيَةِ, یعنی بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے. بنی امیہ نے بہت پروپیگنڈے کیے, بہت سی چیزیں ایسی ایجاد کی کہ جس کے ذریعے سے دین اسلام بدنام ہو, کیونکہ ان لوگوں نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا, بلکہ جب دیکھا کہ اسلام پروان چڑھ رہا ہے اور طاقتور ہو رہا ہے تو ان لوگوں نے اپنے بچاؤ کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا ہے, اور پھر اسلام کے اندر گھس کر اب اس کو انہوں نے نقصان پہنچانا شروع کیا ہے. وہی تمام دور جاہلیت کی چیزیں اس کو لانا شروع کی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک گھوڑے پر, مثال طور پر ایک مرتبہ گھوڑے کی دوڑ ہو رہی تھی,
घोड़े की दौड़ रही थी, उसमें से एक शख्स का घोड़ा जिसका नाम था जाहिज, अब उसका घोड़ा रफ्तार में वो आगे निकल गया। अब जब वो आगे निकल गया तो उसको कुछ लोगों के जरिए से उस घोड़े को कत्ल मार दिया गया। इस बिना पर एक घोड़े की वजह से ना जाने कई सालों तक उस पर जंग होती रही। ये इनकी जहालत थी। एक एक ऊंट पर, एक एक घोड़े पर कई कई सालों तक जंगें होती रहती थी। तो दौरे जाहिलियत में ये था कि एक दूसरे को बर्तरी देते थे। मिसाल तौर पर कभी ऐसा होता था कि अरब को अजम पर बर्तरी देते थे, हैं, और कभी कभी ऐसा होता था कि जो गोरे हैं उनको कालों पर बर्तरी दे रहे हैं, और कभी ख़ानदान को शुमार करते थे कि इनके ख़ानदान में लोग ज़्यादा हैं, जिसके ख़ानदान में लोग ज़्यादा हैं उनको बर्तरी देते थे, जिसके ख़ानदान में लोग कम हैं। कभी कभी शुमार करते थे। जब कभी कभी तादाद कम हो जाती थी तो कब्रिस्तान चले जाते थे। अब कब्रिस्तान में जाकर कब्रों को देखते थे, किसके ख़ानदान की कब्रें ज़्यादा हैं, ताकि अफराद की तादाद ज़्यादा हो जाती। ये तमाम वो चीज़ें थीं जो दौरे जहालियत में थीं, लेकिन रसूल इस्लाम ने आकर इन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया, इन तमाम चीज़ों को मिटा दिया, और यही पैगाम इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में दिया है। यानी जब इमाम जनाबे जौन की शहादत होती है तब भी इमाम ने जौन का सर अपने जानू पर रखा, और जब जनाबे अली अकबर की शहादत हुई तो जनाबे अली अकबर का सर भी जानू पर रखा, क्योंकि इमाम ने दुनिया को पैगाम दिया है कि कोई किसी से बढ़तर नहीं है। अकबर का जहां सर है वहीं जौन का सर है, शब्बीर का जानू है मसावात की दुनिया। इस सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक और सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो मसावात और बराबरी का इमाम हुसैन ने पैगाम दिया है। जो पैगाम रसूल ने दिया है वही पैगाम इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में आकर दिया है। किसी को किसी पर बर्तरी हासिल नहीं है। बढ़तर और अफजल वही है कि जो इंसान इताअत के एतबार से, तक़वा और परहेजगारी के एतबार से बुलंद हो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा तरीन इंसान वो है कि जो मुत्तकी हो, जो इंसान ज़्यादा परहेजगार हो, वही इंसान अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक है। तो ये तमाम बिदअतें इमाम के ज़माने में भी राइज की जाने लगी थी, तो लिहाजा इमाम ने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की कि मैं इन बिदअतों को ज़िंदा नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं इसके ख़िलाफ़ क़याम करूँगा। और इमाम हुसैन ने उसके ख़िलाफ़ क़याम किया और हमें भी ये पैगाम दिया कि जब भी माशरे में और समाज में इन बिदअतों को राइज किया जाए तब तुम हुसैनी बनकर आना और उसका मुकाबला करना, उसके मुकाबले में उठ खड़े होना। और यही इस अज़ादारी का पैगाम है कि जब भी कोई समाज, कोई माशरा या लोग बुराई की तरफ जाएं तो उस बुराई का मुकाबला करें। जब भी कोई जालिम सर उठाए तो हम मजलूम बन गए, मजलूम के हामी और हिमायत वाले बनकर आकर उसका मुकाबला करें। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में हमें हिदायत का पैगाम दिया। अजीज़ों, आज मुहर्रम की 7 तारीख हो चुकी। क़याम हुसैनी में आवाज़ें अल-अतश आना शुरू हो गई हैं। अब बच्चों की हाय प्यास की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। अजीज़ों, जनाब कासिम जितनों के मज़ाहिब पढ़े जाते हैं, लिहाजा जनाब कासिम के ही मसाइब में पढ़ूँगा। जनाब कासिम इमाम के पास आते हैं। जब इमाम ने वो फहरिस्त पढ़ना शुरू की है कि जिसमें तमाम शोहदा के नाम दर्ज थे, जनाब अली अकबर का नाम लिया, जनाब औन मोहम्मद का नाम लिया। जब सबका नाम इमाम ले रहे थे तो इमाम ने मसलहतन जनाब कासिम का नाम छोड़ दिया। तो जनाब कासिम अपने एड़ियों के बल खड़े होते हैं और कहते हैं, चाचा जान, क्या इस फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है? तो इमाम हुसैन ने कहा, ऐ मेरे लाल, इस फहरिस्त में तुम्हारा भी नाम है और तुम्हारे 6 माह के भैया अली असगर का भी नाम है। अज़ादारों, जैसे ही जनाब कासिम सुनते हैं फ़ौरन जलाल में आ जाते हैं और कहते हैं, अम्मू, क्या ये मलून खैमों में आ जाएंगे? ये मलून खैमे में आ जाएंगे? इमाम हुसैन कहते हैं, नहीं मेरे लाल, ये खैमे में नहीं, बल्कि मैं अपने अली असगर को लेकर मैदान में जाऊंगा और मैं सवाल आप करूंगा, लेकिन पानी तो न दिया जाएगा
बल्कि तीर सैशोबा के ज़रिए से मेरे असगर के गले पर तीर वार किया जाएगा। हाँ अज़ादारों, जनाब कासिम को मैदान में जाने की इजाज़त मिलती है। जनाब कासिम मैदान में आते हैं तो एक मर्तबा जब जनाब कासिम दुश्मन पर हमला कर रहे थे तो मरे साद ने अरज़क चूँकि पहलवान था उससे कहा कि अरज़क इस लड़के को कत्ल करो। अरज़क ने कहा कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं अरब का माना जाना पहलवान हूँ, मैं इस बच्चे से जाकर जंग करूँगा, पहले मेरे बच्चे से जाकर जंग करेंगे। अज़ादारों, उसके बाद अरज़क ने अपने छोटे बेटे को भेजा। उसका बेटा आता है, जनाब कासिम ने उसके ऊपर वार किया और उसको वासिल जहन्नम किया। दूसरा बेटा आता है, उसको भी जनाब कासिम ने वासिल जहन्नम किया। तीसरा बेटा आता है, उसको भी वासिल जहन्नम किया। अजीज़ों, जब तीनों बेटों को अरज़क ने देखा कि तीनों बेटे मारे जा चुके हैं, अब ये एक मरतबा गुस्से में आता है ताकि जनाब कासिम के ऊपर आकर हमला करे। लेकिन जनाब कासिम की वो शुजाअत थी, वो बहादुरी थी कि इसको भी वासिल जहन्नुम किया। जब इसको भी जनाब कासिम ने मार दिया तो फौज अशकिया में भगदड़ मच गई कि ये जवान ऐसे नहीं मारा जा सकता, इसको चारों तरफ से हमला किया जाए। चारों तरफ से हमला होने लगा। 3 दिन का भूखा और प्यासा कासिम कहाँ तक जंग करता। एक मर्तबा जब घोड़े से गिरने लगे जनाब कासिम तो आवाज़ दी, अस्सलाम अलैकुम या अम्मा, ऐ चचा जान मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अज़ादारों, इमाम हुसैन के कानों से जैसे ये आवाज़ टकराई, इमाम हुसैन शिकारी शेर की तरीके से मैदान की जानिब दौड़े हैं। लेकिन जब इमाम हुसैन को आता हुआ देखा तो इधर की फौजें उधर भागी, उधर की फौजें इधर भागी। जनाब कासिम बीच में पामाल हो रहे थे। जब घोड़े की टापें पड़ती थीं, जनाब कासिम पुकार कर कहते थे, चचा जान मेरी मदद को आइए। लेकिन इमाम हुसैन जब जनाब कासिम के पास पहुँचे हैं तो जनाब कासिम का लाशा पामाल हो चुका था। इमाम हुसैन करबला की ज़मीन पर बैठ गए और उसके बाद पामाल शुदा लाशे को खैमे में लेकर आते हैं और कहते हैं लाओ जाओ फरवा को बुला लाओ। अज़ादार जनाब उम्मे फरवा आती हैं और कहती हैं कहाँ है मेरा कासिम। इमाम हुसैन ने पामाल शुदा लाशे की तरफ इशारा किया। बीबियों ने सरो सीना पीटना शुरू किया, वाह कासिमा, वाह मुहम्मदा, वाह अलिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना